Good morning. सुप्रभात। I greet you all in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं सभी को अभिनंदन करता हूँ। I do consider this as yet another opportunity to come over here and speak the eternal word of God. मैं एक अवसर परमेश्वर की ओर से समझता हूँ कि परमेश्वर के उस अनंत वचन को आपके सामने आकर के बोल सकूं। The last 1 year God was so good to us. पिछला 1 साल परमेश्वर हम सभी के लिए अच्छा था। So there was a good beginning. इसीलिए एक अच्छा आरंभ था। But a good beginning is not a guarantee for a good finishing. एक अच्छा आरंभ करने का ये मतलब नहीं हुआ, एक गारंटी नहीं हुआ कि एक अच्छा अंत होगा। So we have started good. हम आरंभ अच्छी तरीके से किए हैं। So we can be little bit lazy now onward. हो सकता है कि हम थोड़ा आलस्य हो सकते हैं 1 साल के उपरांत होने Don't पर। think likewise. उस प्रकार से कोई भी ना सोचे Work more and more hard. और भी और कठिन परिश्रम हम करें And to reach the estimated destination. और हम उस जगह तक पहुंच सके जहां तक परमेश्वर हमारे लिए वो जगह रखा है। The vision leads us to mission. एक दर्शन रहेगा तो उस कार्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। Because of the lack of vision, people are perishing. और दर्शन की कमी के कारण से लोग नाश हो रहे हैं। Today the topic given to me is discipleship. आज सुबह मुझे जो शिक्षक दिया गया है वो है चेलापन। A very familiar scriptural portion. और एक बहुत ही एक जाने पहचाने एक आयत क्यों The Gospel according to Saint John, यूहन्ना की सुसमाचार chapter 12, 12वीं अध्याय verses 1 till 8. और 1 से लेकर 8 तक की आयतें हैं। May someone of you read that? कोई आप में से कोई एक व्यक्ति पढ़ करके मदद करे। 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Thank you so much. धन्यवाद। Let us close our eyes. हमारे आंखों को हम बंद करें। Lord, our most gracious heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we thank you and praise you for this wonderful morning time. परमेश्वर इस सुबह के समय के लिए हम आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं। You are our God, our Lord and our everything. परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है और हमारा सब कुछ। Without you, we cannot imagine a life in this world. तेरे बिना इस संसार में हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। What we are, it is because of you. हम जो भी है वो केवल आपके कारण ही है। And today, morning time, we are giving glory, honor, thanks and everything due unto you. प्रभु आज सुबह के समय पर तेरी महिमा, तेरी आदर सब कुछ हम आपको देते हैं। As we are looking into the word of God, हम जैसे परमेश्वर तेरे वचन की ओर देख रहे हैं, give us new insights परमेश्वर नया प्रकाश को तू दे, so that we may live a life ताकि हम जीवित होकर रह पाए worthy of your grace and abundance. और आपकी योग्यता के अनुसार और भरपूरी में। And we are giving ourselves into the mighty hand. और हम अपने आप को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So this particular scriptural portion is very familiar for each and every one of us. ये जो पद आज सुबह हम पढ़े हैं ये हमारे लिए एक परिचित वचन है। We have read it several times. ये काफी बार हम इसमें से होकर गए हैं। We would have heard several sermons. हाँ, हो सकता है हम बहुत सारे प्रचार इसमें से सुने होंगे। And what I am going to speak today morning time, और आज सुबह इस वचन में से क्या मैं बोलने जा रहा हूँ? I am going to speak about genuine discipleship versus
counterfeit discipleship. और यहाँ पर मैं उस चेलापन की उस कार्यों को देखना चाहता हूँ जो कि एक दूसरे प्रकार के चेलापन के साथ किस प्रकार से वो तालमेल नहीं बैठता है। Two types of discipleship. दो प्रकार का शिष्यत्व। One is genuine discipleship. एक ऐसा शिष्यत्व है जो चेलापन की अवस्था है जो कि सच्चा है। On the other hand, fake discipleship. और दूसरे तरफ में जो कि सच्चा नहीं है ऐसा एक शिष्यता। By the end, I wanted to ask or pose a very significant question. और अंत में मैं आपके सामने एक प्रश्न भी रखना चाहता हूँ। In which category you are going to be? और आप किस प्रकार की उस ग्रुप में आप अपने आप को रखते हैं? Whether you are a genuine disciple क्या आप एक सचमुच में प्रभु यीशु के शिष्य हैं or you are a fake disciple. या प्रभु यीशु के एक सच्चा एक चेला नहीं है। Who is a disciple? आप कौन है ये चेला? This is disciples community. ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सब लोग डिसाइपल्स कम्युनिटी है, चेलों का एक समूह है। So in this disciples community, और ये जो चेलों का समूह है, what kind of a disciple you are? और इस समूह में मैं और आप किस प्रकार का एक शिष्य है? Whether you are a good disciple क्या मैं एक अच्छा एक शिष्य हूँ or you are a fake disciple. या मैं एक खोट भरा एक शिष्य हूँ? Whether you are a genuine disciple क्या मैं एक सच्चा शिष्य हूँ or a counterfeit या disciple. एक गलत तरीके का एक शिष्य? That we are going to decide today afternoon. और आज इस दोपहर के समय पर इस बातों के ऊपर हम निर्णय लेने जा रहे In the हैं light of the word of God. और परमेश्वर के वचन के उस प्रकाश में। So when I define disciple, जब मैं इस चेला शब्द का परिभाषा करता who हूँ, is a disciple? कौन है ये चेला? It is derived from the Greek word mathetes. और ये जो यूनानी शब्द मक्तेतेस है उस शब्द में से निकल के आया है। From that word came the English word mathematics. और वही शब्द से अंग्रेजी शब्द जो मैथमेटिक्स है उस शब्द से आया। So who is a disciple? तो कौन है वो एक चेला? A disciple is a person who follows his or her master. और एक चेला वो है जो अपने गुरु के पथ में, उसके कदमों में, उसके पीछे चलता A है। disciple is a person who obeys her or his master. एक चेला वो है जो अपने गुरु का बातों को मानता है और उसके पीछे चलता A है। disciple is a person who is willing to learn something new. एक चेला वो व्यक्ति है जो कुछ नई बात अपने गुरु से सीखना चाहता है। A disciple is a person who never stays at a particular point. और चेला वो व्यक्ति है जो कि एक पॉइंट में वो कभी भी नहीं रहता A है। disciple is a person who is progressive always. और एक चेला वो होता है जो हमेशा आगे जाने की एक प्रक्रिया में रहता है। That means he is a constructive transformer. इसका मतलब ये है वो एक सकारात्मक एक व्यक्ति है। He moves from one place to the other. और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाला एक व्यक्ति, From there to the next. और वहां से दूसरी जगह पर। In that way he is progressively developing. और उस प्रकार से वो अपने आप को और जो सौंपा गया चीजों का विकास करता है। A disciple never stays at a particular point. एक चेला कभी भी एक जगह पर टिके नहीं रहता। Here in the story we see that और इस कहानी में हम देखते हैं Jesus came to Bethany once again. और बेथानी में यीशु एक बार फिर आता है। Jesus is coming to Bethany another time. और दूसरी बार एक बार फिर से यीशु बेथानी में आता है। In chapter 11 we see that Jesus was in Bethany और 11वीं अध्याय में यीशु को हम बेथनिया में देखते हैं। because the sisters sent a note to Jesus. क्योंकि वहां की जो बहनें हैं यीशु मसीह को एक छोटा सा नोटिस भेजा। The sisters Martha and Mary, जो बहनें थी मार्था और मरियम, they are sending a note to Jesus. और वो एक सूचना देते हैं यीशु के लिए। What was that note? और वो सूचना क्या था? Lord, the one whom you love is ill. प्रभु जिससे आप प्रेम करते हैं वो व्यक्ति बीमार है। Lord, the one whom you love is ill. हे प्रभु जो
तू जिससे प्रेम करता है वो व्यक्ति बीमार है। Then Jesus was away from Jerusalem and away from Bethany. उस समय पर वो बेथानी से दूर था और यरूशलेम से भी दूर था। Jesus comes back to Bethany and raises Lazarus from the dead. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु बेथानी में आता है, बेथनिया में आता है और लाजरस को मुर्दे अवस्था से जिलाता है। Then Jesus says that I am the resurrection and the life. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Jesus was not simply saying that I am the resurrection and the life. वहां पर यीशु केवल ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। Anybody can say that I am the resurrection and the life. और कोई भी बोल सकता है कि मैं भी पुनरुत्थान और जीवन हूँ। But Jesus proved that He is the resurrection and life. यीशु केवल बोला नहीं लेकिन साबित किया कि यीशु ही पुनरुत्थान है और जीवन है। The one who is able to give you physical life back is the spiritual life from heaven. और जो व्यक्ति एक शरीर में जीवन दे सकता है वो व्यक्ति एक आत्मिक जीवन है स्वर्ग से। So after raising Lazarus from the dead in chapter 11, और 11वीं अध्याय में प्रभु यीशु मसीह लाजर को मृतक अवस्था से जिलाने के the बाद family invites Jesus for a dinner. और यहाँ पर वही परिवार यीशु को न्योता देता है उनके साथ भोजन करने के लिए। Maybe this dinner party would have been arranged by the sisters. और ये जो डिनर पार्टी है ये बहनों ने मिलकर के आयोजित किया। In reality, it was a Thanksgiving ceremony. और ये एक वास्तविक रूप से देखे तो ये एक धन्यवाद की एक उत्साह था। The sisters were very happy because their brother was brought back to life. बहनें काफी आनंदित थे क्योंकि लाजरस जो मर गया था अभी मरा नहीं है, वो जीवित है यीशु के So द्वारा। they thought that Jesus would get an invitation from us to come and dine with us. और इसीलिए वो बहनों ने सोचा कि यीशु ये न्योता को स्वीकारना है और हमारे साथ हमारी खुशी में परमेश्वर के नाम की महिमा करे। So in order to express their thankfulness unto Jesus, they invited Jesus for a dinner. और यीशु को धन्यवाद देने के लिए अपने घर में भोजन के लिए न्योता देता है। And Jesus came for the dinner. और यीशु वहां पर भोजन करने आता है। 3 members are there in that family. और उस परिवार में केवल 3 लोग वहां पर है। One is Martha, एक है मार्था, another one is Mary, दूसरा मरियम another one is Lazarus. और तीसरा जो है लाजरस। You see that the gestures of these 3 people. और यहाँ पर इन 3 लोगों की उस प्रकट को हम देखते हैं। But Martha was doing. क्या मार्था वहां पर क्या कर रही है? When Jesus came to the family, और जब यीशु मसीह उस परिवार में आया, Martha was preparing delicious food for Jesus. यहाँ पर मार्था यीशु के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना रही है। While Jesus came, जब यीशु इस घर में आया, Mary anointed the feet of Jesus. और यहाँ पर मरियम यीशु मसीह की पांव को सुगंधित पदार्थ से अभिषेक कर रहा When है। Jesus came, और जब यीशु यहाँ आया, Lazarus was reclining with others on the table. और यहाँ पर लाजरस दूसरे लोगों के साथ में भोजन की उस मेज में सेवा कर रहा है। You see, my dear friends, मेरे दोस्तों यहाँ देखे, when Jesus came to their family, जब यीशु इस परिवार में आया, the entire family is involved. और ये पूरा परिवार वहां पर एकत्रित होकर के कार्य में लगे हैं। The entire family members are trying their best to please their master. सारे परिवारगण उस यीशु को प्रसन्न करने के लिए कार्यों में लगे हुए थे। Martha is involved in preparing delicious food. मार्था यहाँ पर इस कार्य में लगा है कि एक स्वादिष्ट भोजन बनाए। She would have been looking at the nice cook manuals and preparing nice food. और हो सकता है मार्था जो है क्या चीज बनाना है उसकी मैनुअल और मेनू को वो ढूंढ रही होगी। And Mary is spending expensive perfume to anoint the feet of Jesus. और मेरी भी सबसे जो कीमती वाला एक जटामासी नहीं तो सुगंधित पदार्थ की खोज में लगी है। So is that somebody is coming to our house जब उसी प्रकार है कोई व्यक्ति जब हमारे घर में आता who है, is more concerned of hospitality, ladies. और कौन है सबसे ज्यादा अतिथि सत्कार करता है, वो है स्त्रियां। That is what these 2 ladies are doing. और यहाँ पर भी ये दोनों महिला
महिला यही कार्यों को कर रहे But हैं। men are needed to talk with the people, और मन जो पुरुष जो है लोगों से बातें करने के लिए रहता to है, make them feel at home. ताकि पुरुष बातें करके लोगों को यह एहसास दिलाए कि आप अपने घर में ही है। That is what Lazarus is doing. और वही बातों को लाजरस यहाँ पर कर रहा है। All are involved. सभी लोग कार्यों में जुड़े हुए हैं। If Jesus comes to your house, यदि यीशु मसीह आपके घर में आता है, if Jesus comes to your life, यदि आपके जीवन में यीशु आता है, how you involve Jesus, आप किस प्रकार से यीशु को अनुमति दे रहे हैं आपके जीवन में, how you behave with Jesus. आप किस प्रकार से यीशु के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। Nowadays, pastors are coming to your families, जब पास्टर्स आपके परिवार में आते हैं, or one of your church brother or sister is coming to your family. जब आपकी कलीसिया से एक भाई या बहन जब आपके घर में आते हैं, How you are showing the signs of hospitality. आप किस प्रकार से वो अतिथि सत्कार दिखाते हैं। One will lock up his or her room and sit inside and look at the laptop. और एक व्यक्ति होंगे आज के घर में कमरे को बंद करके लैपटॉप ऑन करके सारे चीज लैपटॉप में देखेंगे। Another one is involved in something else. और दूसरा घर का जो सदस्य है दूसरे कार्यों में लगे रहेंगे। A third party is involved in something else. और तीसरा जो लोग है वो तीसरे कार्यों में। So you see that different people are involved in different things. यहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक घरों में जो लोग हैं वो अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। But in this family we see three people. लेकिन इस जो लाजरस के परिवार में तीन लोगों को हम They देखते हैं। three are involved in showing their hospitality unto Jesus. और ये तीनों लोग प्रभु यीशु मसीह की अतिथि सत्कार करने में जुड़े हुए हैं। And you see that now onward the people are trying to kill Jesus. अभी यहाँ से सारे वहाँ के जो लोग हैं यीशु को मारने के लिए लगे हुए हैं। Jesus gave life to Lazarus. यीशु मसीह लाजरस को जीवन दिया। That is taking Jesus' life away. और वो जो कार्य है अभी यीशु का जीवन खतरे में पड़ गया और यीशु के जीवन लेने में लोग लगे हैं। So my dear friends, in this story we see two characters. यहाँ पर हम देखते हैं दो व्यक्तियों को। One is Mary of Bethany. और यहाँ पर जो मरियम जो बेथानिया का है। Another one is Judas Iscariot. और दूसरा है यहूदा इस्करियोत। I am going to pinpoint 5 significant aspects. और यहाँ से मैं 5 बातों को बोलना चाहता हूँ। 5 significant aspects in order to narrate the contrast between these two characters. और मैं 5 महत्वाकांक्षी बातों को बताना चाहता हूँ जो मरियम और यहूदा के जीवनों से संबंधित है और किस प्रकार से दोनों का जीवन अलग है। By the end you have to say who is a good disciple. और अंत में प्रचार अंत होते समय आपको बोलना है कि ये दोनों में से सच्चा चेला कौन है And who is a fake disciple. और कौन है जो खोट से भरा हुआ एक चेला। You see that the first point is, और सबसे पहला जो बिंदु है, you see that Mary is doing some things, right? यहाँ पर मरियम जो है कुछ अच्छा कार्य कर रही है। Here Mary's act is commendable. यहाँ पर मेरी का जो कार्य है वो प्रशंसा का योग्य है। But Judas' speech is condemnable. और जो यहूदा जो मुंह से शब्दों को बोल रहा है वो एक तुच्छता को दिखा रहा है। Mary's act is commendable. मरियम की जो कार्य है वो प्रशंसनीय है। But Judas' speech is condemnable. लेकिन यहूदा के मुंह से निकलने वाले जो शब्द है वो घृणित है। If you read the story, यदि आप इस कहानी को पढ़ते हैं, Mary is not speaking even one word. और यहाँ पर मरियम एक शब्द भी नहीं बोल रही है। Mary is not at all speaking in the story. और यहाँ पर मरियम इस स्टोरी में कुछ भी नहीं बोल रही है। But rather Mary is simply performing something. लेकिन मरियम यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। Mary is simply doing something. यहाँ पर मरियम कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। For that only one verse is set apart. और वो उसी लिए ही एक शब्द वहां पर अलग किया गया है। But 3 verses are set apart to
give emphasis for Judah's speech. लेकिन 3 आयतों को इसीलिए लिखा गया है कि यहूदा का शब्द किस प्रकार से किया गया है। You see that Judas is speaking just like a concerned person. और यहूदा यहाँ पर बहुत ही लोगों पर सहानुभूति दिखाने वाला एक व्यक्ति के रूप में वो बातें कर रहा है। Some people know to show that they are concerned. और ये कुछ लोग होते हैं वो दिखाते हैं कि वो कितना सहानुभूति दिखा रहे हैं दूसरों को। On that basis, within the church, we can divide people into two. और इसी प्रकार से कलीसिया में भी 2 दलों को हम अलग कर सकते हैं। The first category is act-oriented people. और पहला जो लोग हैं वो कार्यशीलता में आगे जाने वाले लोग। The second categoरी is speech-oriented और people. दूसरे जो दल है जो ग्रुप है वो बोलने वाले जो दल है। In every church, we can see these two categories of people. हर कलीसिया में 2 प्रकार का दलों को हम देखते हैं। Some people won't speak too much. कुछ लोग हैं जो ज्यादा नहीं बोलते They do things. लेकिन वो करते हैं। Some people speak a lot, कुछ लोग हैं बहुत कुछ बोलते हैं but they do nothing. लेकिन कुछ भी नहीं करते। In this church also you can see such people. और इस कलीसिया में भी अब इस प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। You see that those who do things, और कुछ लोग हैं जो कार्य करते हैं, those who contribute things, जो है कुछ लोग हैं जो कुछ योगदान देते हैं, those who help, जो मदद करते हैं, those who pray, जो प्रार्थना करते हैं, those who extend their hands, जो अपने हाथों को बढ़ाते हैं मदद के लिए, won't speak too much. और ज्यादा कुछ बातें नहीं बोलते। But those who speak a lot लेकिन जो ज्यादा बोलते हैं only speak. केवल बातें करते हैं। They show their concern. और वो अपने सहानुभूति नहीं तो अपनी दया को दिखाते हैं। They show outwardly their concern toward others. और वो दिखाते हैं कि 2 लोगों के लिए बहुत ही केयर करते हैं, कंसर्न करते हैं। But in reality they are not concerned. लेकिन सच्चाई में वो उतना ध्यान नहीं देते। And they are showing this in order to make themselves behind the scene. और वो अपने आप को इस प्रकार से दिखाते हैं कि वो उस पिक्चर के पीछे रहते हैं। You see, my dear friends, अब देखिए मेरे दोस्तों, here Mary is not at all speaking, यहाँ पर मरियम कुछ भी नहीं बोल रही, but she is doing a very significant act. लेकिन वो कुछ कार्यों को कर रही है जो कि बहुत महत्वाकांक्षी है। She is doing something that is eternally valid. और कुछ कार्यों को ऐसे कर रही है जो अनंतता में उसकी मूल्यता है। She is doing something that is very persuasive. और ऐसी कार्य जो कि वो आगे ले जाने के लिए मददगार है। She is doing something that can influence others. और ऐसी कार्य कि दूसरे लोग देख करके उससे प्रभावित हो सकते हैं। Here you see 2 people. यहाँ पर 2 लोगों को आप देख सकते हैं। One is a woman. एक है स्त्री, Another one is a man. दूसरा है पुरुष। One is not part of the disciples. एक जो है जो चेलों के दल में नहीं है, One is privileged in the company of the disciples. लेकिन दूसरा जो है वो चेलापन के उस ग्रुप में सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। Even though उस होने पर भी Jesus is respecting that lady's very act. लेकिन यहाँ पर यीशु उस स्त्री के कार्यों को आदर दे रही है। You दे see, रहा my है। dear friends, आप देखिए मेरे दोस्तों, who is a genuine disciple? कौन है एक सच्चा चेला? Who is a good disciple? कौन है एक अच्छा चेला? Who is a valid disciple? कौन है एक सही तरीके से चेला? The one who shows superabundant generosity. ये एक जो बहुत सारे दया और सहानुभूति को दिखाता है। The one who spends for the Lord. और दूसरा जो कि प्रभु के लिए बहुत सब कुछ चुकाने के लिए तैयार है। The one who honors Jesus from the core of the heart. और जो एक चेला जो कि अपने हृदय से उस यीशु की आदर करना चाहती है। We need to ask unto ourselves, हम अपने आप से पूछना जरूरी है, as we follow this Jesus, जब हम इस यीशु के पीछे चल रहे हैं, what kind of a disciple am I? मैं और आप किस प्रकार का एक चेला है? I am a speech-oriented disciple or an act-oriented disciple? क्या मैं बोलने वाला एक चेला हूं या कार्य करने वाला चेला? You see that some of the disciples
आप देख सकते हैं कि कुछ जो चेले थे, some of the believers, कुछ जो विश्वासी थे, when they are given time for singing or praying or testifying, जब उनको समय दिया जाता है प्रेयर करने के लिए, गाना गाने के लिए या गवाही देने के लिए, 30 minutes are not enough. 30 मिनट काफी नहीं होता है, Speak, speak, speak. और बोलते रहते हैं, But they act nothing. लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। But you see that what Jesus honors, लेकिन यहाँ पर यीशु क्या नमूना दिखा रहा है, what Jesus is looking from us. लेकिन यीशु हमसे क्या देख रहा है, We should act in the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कार्यों को करना है, We need to perform in the presence of हमें Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति में कार्यशीलता को दिखाना We है। need to show our super abundant generosity. हम हमारे जो करुणा भय जो हृदय है, करुणा में हृदय को दिखाना है, We need to show how we are respecting our Lord. और हमें ये दिखाना है कि हम हमारे प्रभु को हम किस प्रकार से आदर देते हैं। It is not through our words, ये हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, it is through our actions, ये हमारे कार्यों के द्वारा, it is through our performances. ये हमारे कार्यशीलता के द्वारा। You see the main difference between two things I would like to highlight today morning, afternoon time. दो प्रकार की अलगपन की बात को मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूँ। We can see a lot of Christians around the world, और हम बहुत सारे मसीहों को हम देखते हैं, but we cannot see many disciples of Jesus. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जो सच्चे जो चेले हैं वो हम आज हम नहीं देख पा रहे हैं। So is that Christians are a lot, और मसीही लोग बहुत सारे हैं, because it is okay the largest religious community in the world. और इस कारण से ही आज विश्व भर में सबसे जनसंख्या वाला एक धर्म बन गया। When I talk about Christians, it is all about the namesake Christians. और मैं जब क्रिश्चियंस बोल रहा हूँ, नामधारी क्रिश्चियंस के बारे में बोल रहा हूँ। If you think that you are a Christian, यदि आप सोच रहे हैं कि आप एक मसीही है, as a so-called Christian, और जो दुनिया में देखने वाले मसीहों की तरह, you need to turn to be a disciple of Jesus. आपको ये होना जरूरी है कि आप एक चेला बने। Judas Iscariot was a Christian, और यहूदा इस्करियत जो है वो मसीह के पीछे चल रहा है और वो क्रिश्चियन है। but Mary of Bethany was a real disciple of Jesus. लेकिन मरियम जो बेथानी में थी वो एक सच्चा चेला थी। Whether you are a Christian or a disciple of Jesus. आप एक मसीही है या आप सचमुच में यीशु के चेले हैं। So the first contrast is Mary's act is commendable, and whereas Judas' speech is condemnable. पहला जो बिंदु हम देखते हैं कि मरियम का जो कार्य है वो प्रशंसा के योग्य है, लेकिन यहूदा का जो शब्द है वो एक घृणित है। The second point is दूसरा जो बिंदु है, Mary filled the house with the fragrance of the perfume. और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, मरियम उस भवन को सुगंधित पदार्थों से सुगंधित किया, Whereas Judas filled his heart with evil things. जहाँ बल्कि दूसरी तरफ यहूदा अपने हृदय को दुष्टता की कार्यों से भर दिया। Let me repeat, Mary filled the house with the fragrance of the perfume. और मरियम जो है अपने घर को सुगंधित पदार्थ से सुगंधित की, Whereas Judas filled his own heart with evil things. लेकिन बल्कि दूसरी जगह पर यहूदा अपने हृदय को दुष्टता की बातों से भर दिया। Both are filling some spaces. और दोनों जो व्यक्ति है कुछ ना कुछ खाली जगह को भर रहे हैं। The lady is filling the house. और जो स्त्री है वो घर को भर रही है। So because of the fragrance of that perfume, the entire community was blessed. वो सुगंधित पदार्थ के सुगंध के कारण से वहां का समूह सुगंधित हो गया। So that was a positive perfume. वो एक सकारात्मक तरीका का एक सुगंधित पदार्थ That है। is why Paul says in 2 Corinthians chapter 2:15, इसीलिए पौलुस दूसरी कोरिन्थी 2:15 में कहता है, you are the aroma of Christ. आप मसीह का एक सुगंधित व्यक्ति है। Among those who are being saved and और- those who are perishing,
perishing, और जो उद्धार पा रहे हैं उनके मध्य में you are an aroma of Christ to God. आप एक सुगंधित है मसीह में परमेश्वर के लिए। You all are perfumes. यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग एक सुगंधित पदार्थ हैं। So I like perfumes. मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। So before go to the class, I may put some perfume on my body. और क्लास में जब पढ़ाने जाने से पहले मैं अपने बॉडी में मैं सुगंधित पदार्थ को परफ्यूम को मारता हूँ। So that people may not get the sweat smell. ताकि जो स्टूडेंट्स है वो कुछ दुर्गंध को ना सूंघ पाए। But here Paul says that you are an aroma of Christ. लेकिन यहाँ पौलुस बोलता है कि तुम मसीह के सुगंधित पदार्थ हो। The Greek word is euodia. और उस जो यूनानी शब्द है यूओडिया बोलते हैं उस सुगंधित पदार्थ। That means sweet savor. इसका मतलब ये है कि मधुर जो जटामासी है, Sweet fragrance. जो एक मधुरता का एक सुगंध, And something that is very sweet. और जो कि बहुत ही मिठास है, That makes others pleasant. जो दूसरों को बहुत ही प्रसन्नित कर देता है, That makes others very much enthusiastic. जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि वो आगे बढ़े। And you said Mary is filling the entire house with the fragrance of the perfume. यहाँ पर मेरी भवन को सुगंधित पदार्थ के सुगंध से भर रहा है। But Judas was filling his heart लेकिन यहूदा जो था अपने हृदय को भर रहा है with something that is very evil. और जो कि बहुत ही दुष्टता की बात, Something that is demonic. जो कि एक शैतानिक था, Something that is not from above but from below. जो कि ऊपर से नहीं था लेकिन नीचे से आई हुई विचार। So you need to ask unto yourself. और आपको ये पूछना है अपने आप में, Today morning time, afternoon time. आज जो दोपहर के समय में Are you a person who is filling your houses with the savor of क्या Jesus मैं एक Christ? ऐसा व्यक्ति हूं जो मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह के सुगंध से मैं सुगंधित करता हूं? Are you spreading the fragrance of Jesus Christ wherever you go? आप क्या प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को फैलाते हैं आप जहां भी जाते हैं? Or you are filling your own heart with evil things? या अपने हृदय में दुष्टता की कार्य का निर्माण कर रहे हैं? What kind of a disciple you are? मैं किस प्रकार का एक शिष्य हूं? So you may think that I am a disciple like Mary of Bethany. आप सोच रहे होंगे कि बेथानी में जो मरियम थी, मरियम की तरह एक शिष्य हूं, Because I am part of this church. क्योंकि मैं इस कलीसिया का एक भाग हूं। Judas was also part of the church, और यहूदा भी कलीसिया का भाग था, but he was filling his heart with evil things. लेकिन वो अपने हृदय में दुष्टता को भर रहा था। You see that being part of this church, आप देख रहे हैं कि कलीसिया का एक भाग होने के नाते भाग होने के बावजूद you can be a negative person. आप एक नकारात्मक व्यक्ति बन सकते हैं, You can be a demonic person. आप एक शैतानिक व्यक्ति बन सकते हैं। So my dear friends, be a good disciple of Jesus Christ. तो मेरे दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे चेले बने। Wherever you go, spread the gospel of Jesus आप Christ. जहां भी जाए प्रभु यीशु मसीह का सुवार्ता सुसमाचार को फैलाए। You are the light of the world. आप जगत के ज्योति हैं, You are the salt of the earth. आप इस संसार के नमक हैं, You are sheep among the wolves. आप लोमड़ियों के बीच में एक मेमना है, You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर है, You are the aroma of Christ. आप मसीह का एक सुगंधित पदार्थ है। In Christ's baptism, you are the children of God. और मसीह में बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर के संतान है। You are a victorious community because you are following the Lamb of आप God. एक विजयी समूह में हैं क्योंकि आप उस परमेश्वर की मेमना के पीछे चल रहे हैं। Understand your identity and personality. आप अपने व्यक्तित्व को समझे और आगे बढ़े। Who are you? आप कौन हैं? You are a son of God. आप परमेश्वर का पुत्र हैं। You are a daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्री हैं। You are a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं। If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, if you are a follower of Jesus, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले एक चेले if you हैं, are a real disciple of आप Jesus, एक सचमुच में एक चेले हैं, you will make not only your life pleasant,
but also others' lives pleasant. आप केवल अपने ही जीवन को ही एक अच्छा नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरों के जीवन में भी अच्छाई को लेके आएंगे। Jesus made a very significant imperative, go. और यहाँ पर ये यीशु मसीह के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक शब्द बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जा Ye into all the world. और संसार के अंत तक तुम जाओ। Preach, teach, baptize in the name of Father, Son and Holy Spirit. प्रचार करो, सिखाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, And make everybody my disciples. और सबको चेले बनाओ। Everybody. सभी लोग। You see that the Greek word is panta ta ethne. और वो यूनानी शब्द जो लिखा गया पांटा Ta ethne. टा यत्ने, That means go among every ethnic groups. इसका मतलब ये है कि जाओ और जा करके हर जनजातियों के बीच में जाओ। Is that in our translations it is go into all the nations, is right? हमारे जो ट्रांसलेशन में वो लिखा है कि संसार के राज्यों में जाओ, नहीं तो But if संसार we के अंत में जाओ। rightly translate, लेकिन वो सही तरीके से यूनानी अक्षरों से यदि हम ट्रांसलेट करें, go among all the people groups. और वहां पर बोला गया है जनजातियों के बीच में जाओ, Go among all the communities. सभी समूहों के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलो। Irrespective of caste, color, race and everything. जात भेद भाव रंग ये सब को ना देखते हुए हर एक व्यक्तियों के समूह में पहुंचो। So my dear friends, it is our duty, our responsibility to go and spread the sweet aroma of Jesus इसीलिए Christ. हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है कि प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को हर एक व्यक्तियों तक पहुंचाना है। Mary filled the house with the fragrance of the perfume, मरियम अपने घर को सुगंधित पदार्थों से सुगंधित की, whereas Judas filled his own heart with evil things. जहां दूसरी तरफ यहूदा अपने हृदय में दुष्टता की बातों से भर दिया। The third thing is, और तीसरी जो बात है, Mary was spending 300 denarii to buy the perfume. और यहाँ पर मरियम को देखते हैं कि 300 दिनारी को दे करके वो जटामांसी का उस परफ्यूम को खरीद रही है। Whereas Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver. लेकिन दूसरी जगह पर यहूदा 30 चांदी के सिक्के को कारण उसको लेकर के यीशु को नकार दिया। This lady spent 300 denarii. ये जो स्त्री है 300 दिनारी खर्च करके सुगंधित पदार्थ को, 300 silver coins. 300 चांदी के सिक्के। In the first century context, पहले सदी का जो संदर्भ में, if a daily wager go for work, यदि हर दिन जो कमाने वाला जो व्यक्ति है जब ये काम में जाता he है, can maximum earn 1 silver coin. वो एक दिन में केवल एक चांदी का सिक्का ही वो कमा सकता है। In that case, this perfume's cost was 300 silver coins. लेकिन उसी जगह के तुलना से हम देखें तो ये जो परफ्यूम है, जो सुगंधित पदार्थ है, उसका कीमत था 300 चांदी के सिक्के। That means what? This is a person's 1 year's income. इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति का एक साल का जो तनख्वाह है, जो वेतन है, उसे खर्च करके सुगंधित पदार्थ को If खरीद we रही है। cut off the Sabbath and the weekends, यदि साबत के दिन और वीकेंड्स को यदि हम काट दे तो that means the perfume's cost was a very high amount. और इसका मतलब यह है कि जो सुगंधित पदार्थ जो था वो काफी कीमत चुका करके खरीदा हुआ था। In that case, this lady was showing super abundant generosity. और यहाँ पर इस स्त्री के बारे में यदि हम देखें तो वो भरपूरी, नहीं तो कितनी भरपूरी के एक अनुभव को दिखा रहा प्रेम में। It is not like we are going sometimes to the church with 1 rupee or 10 rupee note. और हम कभी कभी चर्च में हम 1 रुपये के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के की तरह नहीं। So she was going with a big amount of that time. लेकिन उस समय में एक बहुत बड़ा एक कीमत को वो चुका रही है। I already told you that it is 1 year's income. मैंने पहले बोला कि एक साल का वेतन है ये। You see that
1 year's income she spends for anointing the feet of Jesus. और वो 1 साल में जो कमाई है, वो 1 साल की कमाई को यीशु मसीह की पांव की तले वो डाल रही है। What a great hospitality. कितनी महानता का एक अतिथि सत्कार, What a great respect for Jesus. कितना आदर दिखा रही है प्रभु यीशु मसीह के लिए, What a great honor for Jesus. यीशु के लिए कितनी बड़ी एक आदर है ये। But Judas was trying to sell the same Jesus लेकिन यहूदा जो था वो यीशु को बेचने में लगा हुआ था, for a puny little amount. और ये थोड़ी सी पैसे के लिए, 30 silver coins. केवल 30 चांदी के सिक्के के लिए, 1/10 of the amount the lady spent. और जो स्त्री जो खर्च की उसका केवल दशवांश ही, उससे ही तृप्त होकर के यीशु को बेच So दिया। in churches we see 2 categories of people. इसीलिए कलीसियाओं में भी 2 तरह के लोगों को हम देखते हैं, Those who spend for Jesus super abundantly. जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं, On the other hand, और दूसरी तरफ में a group of people they are trying to sell Jesus and survive out of the amount. और जो है जो यीशु दूसरी तरफ है, यीशु को बेच करके उसमें से जो मिलता है उससे अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। That is what we see in Judas Iscariot. और वही बातों को यहूदा इस्करियोत में हम देखते हैं। Are you a disciple like Mary of Bethany or Judas Iscariot? क्या आप बेथानिया के उस मरियम की तरह एक चेले हैं, या यीशु का जो चेला यहूदा की तरह एक चेले हैं? What is the intention behind your being here in the church? आप यहाँ पर कलीसिया में आने के पीछे का उद्देश्य क्या है? What is the very purpose for your being here? आपका उद्देश्य क्या है जब आप परमेश्वर की कलीसिया में है? To please the master? क्या आप अपने मास्टर को प्रसन्न करने के लिए है? To respect Jesus? क्या आप यीशु को प्रसन्न और आदर करने के लिए है? Give glory, honor, thanks and everything due unto him? क्या महिमा आदर और सब कुछ जो है वो परमेश्वर को मसीह को देने के लिए है? And to show your respect super abundantly? क्या अपने आदर को एक बहुतायत से परमेश्वर को अर्पित करने के लिए है? Or with an intention I wanted to get something from the church, from Jesus? या कि हमें सब कुछ, मुझे यीशु से मुझे सब कुछ लेना है, उस उद्देश्य के साथ में आप कलीसिया में This हैं। man was like that. और ये जो पुरुष है उस प्रकार से था, He was trying to get something from the church. और ये जो व्यक्ति था वो चर्च से कलीसिया से कुछ वो प्राप्त करना चाहता He था, was trying to get something from Jesus. और वो यीशु से कुछ प्राप्त करना चाहता था। He was trying to sell Jesus for a puny little और amount. ये यहूदा कुछ ही पैसे के लिए वो बेचना चाहता था यीशु को। What kind of a disciple you are? मैं और आप किस प्रकार के एक चेले हैं? You can be in the church lifelong, आप कलीसिया के अंदर में जीवन भर रह सकते हैं, being like Judas Iscariot. यहूदा की तरह आप रह सकते हैं। At the same time, being in the church just like Mary is a difficult thing. लेकिन मेरी की तरह वही जगह पर रहना ये बहुत कठिन बात है। You see that? आप देख रहे हैं इस बात को? You can be within the church आप कलीसिया के अंदर रह सकते हैं and easily survive और आराम से जी सकते हैं, lifelong without any difficulty जीवन भर बिना किसी संघर्ष के जी सकते हैं, as a follower of Judas Iscariot. और यहूदा इस्करियोत की तरह चलते हुए। But remaining in the church just like Mary of Bethany is one of the Herculean tasks. लेकिन मरियम की तरह उस कलीसिया में रहना एक बहुत ही कठिन काम है। What kind of a disciple you are? आप और मैं किस प्रकार की एक चेले हैं? Whether you are a Christian or a disciple. आप एक मसीही है या चेले हैं? I don't want to be nomenclatured as a Christian. मैं एक जो नामधारी एक मसीही की तरह मैं नहीं रहना चाहता, I wanted to be a disciple within the church. लेकिन मैं एक चेला बनना चाहता हूं कलीसिया में। That is what Gandhi ji told और वही बात गांधी जी ने भी कहा, to the Christians. मसीहों को देखकर कहा, I don't like your Christians.
मैं जो मसीही लोग हैं उन्हें मैं पसंद नहीं करता, but I like your Christ. लेकिन आपके जो मसीह है उसे मैं पसंद करता हूँ। I don't like your Christians, मैं आपके मसीही लोगों को पसंद नहीं but करता, I like your Christ. लेकिन आपके जो मसीह है उसको मैं पसंद The करता हूँ। Christians were a stumbling block for Gandhiji to come to Christ. मसीही लोग एक अड़चन बन गए थे गांधी को मसीह को स्वीकारने के लिए। Are you a stumbling block within the church? क्या आप एक अड़चन है, रुकावट है परमेश्वर की कलीसिया में? Are you a follower of Judas Iscariot? क्या आप यहूदा इस्करियोत का पीछे चलने वाले हैं? Are you a fake disciple? क्या आप एक गलत चेलापन की अवस्था में हैं? Are you a counterfeit disciple? आप एक गलत चेला है क्या? Or you are a genuine disciple? या आप एक सच्चाई में एक चेले हैं? Nowadays there are so many counterfeit currency notes. आजकल हम बहुत सारे जो नोट्स हम देखते हैं, पैसे के जो नोट देखते हैं उसमें बहुत सारा कपटपन हम देखते हैं, डुप्लीकेट हम देखते हैं। You see that the 2000 rupees currency note came the same week in Chennai. The same kind of notes were found as fake notes. और हम जानते हैं 2000 का नोट जब छपा था तो वही हफ्ते में चेन्नई में उसका डुप्लीकेट नोट भी निकल गया था। You see, my dear friends, आप देखिए मेरे दोस्तों, Mary spent 300 dinari मरियम जो है 300 दिनारी को खर्च की to honor Jesus. यीशु को आदर करने के लिए। You see that following Jesus is costly. क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक कीमत चुकाना है। Following Jesus is a costly affair. और यीशु के पीछे चलना एक कीमत चुकाने का कार्य है। You may sometimes think that following Jesus is very cheap. आप सोचते होंगे कि यीशु के पीछे चलना बहुत ही साधारण सी बात है। But in this lady's life shows that following Jesus is not a cheap matter, but it is a costly affair. लेकिन ये स्त्री के जीवन से हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि यीशु के पीछे चलना एक कीमत चुकाने का एक And जीवन she है। is showing super abundant generosity. और यहाँ पर वो एक बहुतायत का एक आदर और दया को दिखा रही The है। fourth thing is और चौथी बात जो है, being a host. और आप एक होस्ट बने, एक Host, H-O-S-T. जो सत्कार का अतिथि सत्कार करने वाला प्रमुख व्यक्ति बने। Being a host, Mary was doing her best to honor her master Jesus. और वो अतिथि सत्कार करने वाला उस प्रधान के रूप में यीशु का अतिथि सत्कार वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। But being an invited guest, along with Jesus, Judas was criticizing the host plans. लेकिन यीशु के साथ बुलाया गया जो यीशु का चेला जो यहूदा था, वो आलोचना करने वाला एक व्यक्ति में बदल गया। Mary is a host. मरियम जो है वो होस्ट है, वो अतिथि सत्कार करने की प्रधान है। But Judas is a guest. लेकिन यहूदा एक मेहमान है। But who is concerned of this money matter? और ये जो पैसे के विषय में कौन यहाँ पर है? Mary should be concerned. और मरियम यहाँ पर उसके बारे में चिंतित होनी Because चाहिए, she is spending from her pocket or from her treasury. क्योंकि मरियम खुद अपने ही पॉकेट से वो खर्च करके यीशु के चरणों में डाल रही है। But as an invited guest, लेकिन एक बुलाया गया एक न्योते एक गेस्ट की तरह Judas would have thought, यहूदा इस प्रकार से सोचा, I am getting a nice dinner. मैं एक अच्छा भोजन मुझे मिल रहा है, Every elements are there. सब कुछ भोजन की अच्छे अच्छे पदार्थ वहाँ हैं, At least they would have invited me. और हो सकता वो इसीलिए मुझे बुलाए हैं। I am thankful to them. मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ उनके That लिए। he would have thought. और उस प्रकार से वो सोच सकता था, Instead, he was criticizing the plans of the host. लेकिन उस प्रकार से ना सोचते हुए जो अतिथि सत्कार कर रहे थे उनकी आलोचना करने के लिए वो सोच रहा है। So is that one who is spending, one who is not spending. और ये एक व्यक्ति जो खर्च कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो खर्च नहीं कर रहा The है। one who spends does not have a problem for spending money. जो खर्च कर रहा है उसको कोई समस्या नहीं है खर्च करने के लिए। The one who is not spending, और ये एक व्यक्ति जो खर्च नहीं कर रहे he हैं has a problem.
लेकिन उनको एक समस्या है। So, my dear friends, तो मेरे दोस्तों, what kind of a disciple we are? मैं और आप किस प्रकार के एक चेले हैं? This lady became a very good host. और ये जो स्त्री है, ये एक अतिथि सत्कार करने वाले एक अच्छा प्रधान बनी। She extended her hospitality, वो अपने अतिथि सत्कार के गुणों को दर्शाए, extended her सत्कार को दिखाए, extended her love towards Jesus. अपने प्रेम को दिखाया यीशु के लिए। But this fake person, लेकिन ये एक झूठा जो व्यक्ति है, and he was against the plan of that lady. और उस स्त्री के खिलाफ में जा रहा है, Because he was controlled by demon. क्योंकि ये जो व्यक्ति था वो शैतानिक बंधनों में था, शैतान से कंट्रोल में था। Because he was controlled by devil. और ये जो व्यक्ति है शैतान के द्वारा नियंत्रित था। Again, what kind of a disciple you are? और मैं आगे पूछना चाहता हूँ, मैं और आप किस प्रकार के चेले हैं? Are you a disciple like Mary of Bethany? क्या आप बेथानी के मेरी के समान, मरियम के समान एक चेले हैं? Or you are pretending like a good disciple but you are not? या आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आप एक अच्छे चेले हैं लेकिन सचमुच में चेले नहीं हैं? Don't be a Judas. यहूदा हम कोई भी ना बने। 3.5 years he was with Jesus. 3.5 साल वो यीशु के पीछे चला, Finally he sold his master. और अंत में अपने ही गुरु को बेच डाला। Are you sellers of Jesus? क्या आप यीशु को बेचने वाले हैं? Or you are a spending person for Jesus? या मसीह के लिए आप खर्च करने वाले एक व्यक्ति हैं? We need to spend for Jesus. हम मसीह के लिए खर्च करने वाले बनना You may not चाहिए। have money to spend. आपके पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए, Spend time for Jesus. लेकिन एक समय जो परमेश्वर ने दिया है, वो समय परमेश्वर के लिए खर्च कर Spend सकते your हैं। life for Jesus. आपके जीवन आप परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। Spend your children for Jesus. आपके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च करें। Spend your husband for Jesus. आपके पति को आप यीशु के लिए खर्च करें। Spend your wife for Jesus. आपके पत्नी को आप यीशु मसीह की सेवा के लिए खर्च Spend your करें। resources for Jesus. आपके पास जो भी है वो सब कुछ मसीह के उद्देश्य में करें। Our intention should be spending for Jesus rather than gaining from Jesus. हमारा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के लिए अब सब कुछ देने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि यीशु से सब कुछ प्राप्त करने वाला। When you start spending for Jesus, जब आप यीशु के लिए सब देने के लिए जब तैयार है, automatically gains would follow you. और उसी समय आप देखेंगे कि जो कुछ आपके साथ जुड़ना है वो सारा प्रॉफिट्स आपके साथ जुड़ता रहेगा। That is my testimony. ओ मेरा गवाही है। I didn't have much money to spend for Jesus. मेरे पास पैसे नहीं है यीशु के लिए खर्च करने के लिए, I spend my life for Jesus. लेकिन मैं अपना जीवन में यीशु को दे दिया है। I spend my wisdom for Jesus. मेरा जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर दिया मैं यीशु के लिए दे दिया। I spend my humble life for Jesus. और मेरा जो जीवन है वो नम्रता से मैं यीशु के लिए दे दिया हूँ। Because I was spending every day one after another, जब एक दिन से दूसरे दिन मैं अपने आप को जब खर्च कर रहा था, Jesus gave me blessings one after another. और यीशु मसीह अपने आप में मेरे साथ सारे अनुग्रहों को जोड़ता गया। The starting point should be spending for Jesus. पहला जो स्टेप होना चाहिए मसीह के कार्यों के लिए हमें देने वाला बनना The चाहिए। starting point if your discipleship is not gaining something for Jesus, चेलापन का पहला स्टेप कुछ प्राप्त करने वाला the नहीं है, starting point should be how can I spend something for Jesus. लेकिन पहला जो स्टेप जो है मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं अपने जीवन से क्या दे सकता हूँ। Then definitely you will gain multifarious blessings in your life. आप तब देखेंगे कि आपके जीवन में मसीह का जो भी आशीष है आपको प्राप्त करते हुए आप देखेंगे। And the last point. और मैं आखिरी बिंदु पर पहुंचता हूँ। You see that while Judas prepared himself to betray his master, जब हम देखते हैं कि यहूदा अपने आप को तैयार कर रहा है कि अपने ही गुरु को वो त्याग दे, you see that Judas prepared himself और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहूदा अपने आप को तैयार किया to betray Jesus, यीशु को बेच देने के लिए, his own master. अपने गुरु को। That led to the death of Jesus. और वो ही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। You see that he prepared himself आप वहां देख रहे हैं कि वो अपने आप को तैयार किया to betray Jesus.
यीशु मसीह को तिरस्कार करने के लिए, that led to the death of Jesus. और वो यीशु मसीह को क्रूस पर, मृत्यु पर ले गया। But Mary prepared herself लेकिन मरियम अपने आप को तैयार की for the day of the master's burial. और वो अपने गुरु का उस मृत्यु का समय में जो तैयारी करना था सुगंधित पदार्थ से, That उसके is लिए what तैयार। Jesus says. और वही बात यीशु कहती है, यीशु She कहता है। was keeping this perfume for the day of his burial. और ये मरियम जो है, ये सुगंधित पदार्थ को वो उसके अंतिम जो संस्कार जो करना था उसके लिए वो तैयार करके रखी You थी। see that both Judas and Mary were preparing for something. यहाँ पर यहूदा और मरियम दोनों अपने आप को तैयार कर रहे थे। Judas was preparing to kill and arrest and betray Jesus. यहूदा वो तैयार कर रहा था कि वो चेलों को, यीशु को वो तिरस्कार करे। But Mary was preparing herself for the day of the Lord's burial. और ये लेकिन मरियम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही Thus थी। she became an aroma of और Christ. उस प्रकार से वो मसीह के लिए एक सुगंधित पदार्थ बन So I गई। wanted to come back to the question that I posed right at the beginning. और मैं जो शुरुआत में जो प्रश्न आपसे पूछा था वो प्रश्न में मैं वापस आता हूँ। This is disciples community. ये जो है चेलों का समूह है, It is not a fake disciples community. और ये एक झूठा जो चेला का एक समूह नहीं है। It is not a counterfeit disciples community. एक झूठी प्रकार का एक चेलापन का समूह नहीं है। This is a community of the redeemed people. और ये जो समूह है वो छुटकारा पाए हुए लोगों का समूह है। You have to evaluate today afternoon time. और आज इस दोपहर के समय पर वो अपने आप का आप जांचे, अपने आप को जांचे। What kind of a disciple are you? मैं और आप किस प्रकार के एक चेले हैं? What kind of a disciple are you? मैं और आप किस प्रकार के एक चेले हैं? Are you a person who is speech oriented or act oriented? क्या आप इस प्रकार के चेले हैं जो ज्यादा बोलते हैं, या आप इस प्रकार के चेले हैं जो कार्य करते Are हैं? you a person who is spending for Jesus or trying to gain from Jesus? आप ऐसे एक चेले हैं जो कि परमेश्वर के लिए सब कुछ खर्च करना चाहते हैं, या उस यीशु से सब कुछ प्राप्त करना के लिए पीछे So चल let रहे us हैं? pray unto Jesus. इसीलिए हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु से। Oh Jesus, यीशु मसीह, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। I was taking it granted all the time. मैं सब कुछ ऐसे ही मैं ले रहा था मेरे जीवन I में। was not indeed following you. मैं सचमुच में तेरे पीछे नहीं चल रहा था, And I was not much concerned of the kingdom of God. और मैं उस तेरे राज्य के लिए उतना मैं ध्यान नहीं दिया। I was so far a self-oriented person. मैं केवल अपने आप में सोचता था, अपने बारे में केवल सोच के पीछे चल रहा I था। was thinking in a worldly manner. मैं एक संसारिक तरीके से सब कुछ सोच रहा था। I was never concerned of you, Lord. मैं के कभी भी तेरे प्रति एक सहानुभूति नहीं दिखा पाया। Lord Jesus, forgive me प्रभु यीशु, तू मुझे क्षमा करना and give me peace in my life. और मेरे जीवन में एक शांति देना। Give me love. मेरे जीवन में तेरा प्रेम दे। Give me every blessings in my life. परमेश्वर, जो आशीष है तू मेरे लिए रखा गया है वो सब कुछ तू मुझे दे, So that our family life may be blessed. ताकि हमारा पारिवारिक जीवन एक आशीषित जीवन में बदल दे। Lord, visit my family. परमेश्वर, ये मेरा परिवार है। Lord, visit my children. परमेश्वर, ये मेरा बच्चे हैं। Lord, visit my husband. परमेश्वर, मेरे पति से तू मुठभेड़ कर। Visit my wife. मेरे पत्नी के साथ जाकर मिल तू। Visit my parents. मेरे माता पिता से प्रभु यीशु तू जाके मिल, So that they may be transformed. ताकि वो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, So that they may be rejuvenated. ताकि उनका जीवन ताजगी भर जाए, So that they may be changed. ताकि उनका जीवन बदल जाए, So that we can see how God works in the people of God. ताकि हम देख सके कि किस प्रकार से प्रभु तू लोगों के जीवन में कार्य करता है। Lord, I don't want to be a fake disciple. परमेश्वर, एक झूठा चेला बनना मैं नहीं चाहता। I wanted to be a genuine disciple. परमेश्वर, सचमुच में वास्तविकता में मैं एक चेला बनना A चाहता हूँ, true man of God. एक सच्चा परमेश्वर का A true व्यक्ति, woman of God. एक परमेश्वर का एक सच्चा स्त्री, A true child of God. परमेश्वर का एक सच्चा बेटा। Lord,
make me, change me, Lord. परमेश्वर तू मुझे बना और तू मुझे बदल दे। Can you pray in the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना कर You सकते can हैं? pray in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? If you pray genuinely, यदि आप सचमुच में यदि आप प्रार्थना करें, Jesus is here to hear your prayer. यीशु मसीह आज हमारे मध्य में है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। He can change your life. आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदल He सकता can है। give you peace. यीशु मसीह आपके जीवन में शांति दे सकता He है। can give you love. आप यीशु मसीह आपके जीवन में प्रेम दे सकता है। He can give you success. आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सफलता दे He सकता है। can give you healing. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चंगाई दे He सकता can है। give you prosperity. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कुशलता दे सकता He है। can give you all the favors. प्रभु यीशु मसीह आपको जो चाहिए सब कुछ वो दे सकता He है। can give you everything that are needed in your life. आपके जीवन के लिए जो भी जरूरत है वो सब कुछ वो प्रदान करने के लिए योग्य है। But one thing is very significant. एक बात जो सबसे ज्यादा महत्व है, You need to change. हमें बदलना है। You need to be changed हमें बदलना है as a genuine disciple of Jesus. एक सच्चा चेले की तरह, As a man of God. एक परमेश्वर के पुरुष के समान, As a woman of God. परमेश्वर की एक स्त्री के समान। Let us pray unto Jesus. हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से। Thank you. Lord Jesus, प्रभु यीशु change me, मुझे बदल दे। renew me, परमेश्वर तू मुझे चेंज कर। and give me a spirit of wisdom परमेश्वर एक ज्ञान की आत्मा मेरे अंदर डाल, so that I can change others, ताकि मैं अपने जीवन से दूसरों को बदल सकूं। so that I can remain as a genuine disciple of Jesus. परमेश्वर मैं एक सच्चा चेला में बन पाऊं। Thank you that you are making me new. परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि तू मुझे एक नया व्यक्ति बना रहा है। I give myself into thy mighty hand. मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। May आमीन। God bless us through the hearing of the word of God. परमेश्वर हम सभी को आशीष करे इस वचनों के द्वारा।